Okay, friends, welcome back to my channel. And here I am with the most awaited video for you on IBO 03, India's foreign trade. ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हालांकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसको करने के लिए, बट स्टिल देन आई मैनेज टू राइट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर यू. And before we proceed, you know, uh, apart from reading my notes, I will also advise you to read your study books and other notes. Okay, and before we move on, just one request, that those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe, and also share this videos and channel to your friends and relatives. Okay, fine, friends. Let's start with the first question. The strategy to integrate India's trade with world trade. Okay, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट? एंड कुछ इंपॉर्टेंट की सेंटेंसेस इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, जैसे इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. नाउ दिस ईयर is regarded as the most important year for India's economic development. And बहुत ही important economic policy introduce की गई थी during this year, and it opened door for liberalization, privatization, globalization. These were the three pillars of the economic reforms which were introduced in 1991, right? The object was to remove all trade restrictions, but the scheme failed to achieve success, right? What are the reasons for that? A rapid growth in export trade needs to be done. Export transactions should be simplified. Communication system needs to be improved. More domestic and FDI, that means foreign direct investments, are encouraged. SEZ, that is SEZ, SEZ and other parks were created to promote exports. These are, special economic zones, SEZ. And the various types of duties and taxes were reduced. Innovation in new technology has been given importance, and subsidies and other such benefits were also offered to the exporters so that they can carry on with more and more of exports. Okay, let's move on to the next question. Measures taken by the government to promote exports. इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ देखते हैं कि इसके कुछ क्या मतलब इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मेरे पास. नाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, gems and jewelry industries is the largest in the world. India has the largest number of artisans, okay, and it is the major item of export in India. And let's see the the problems which are faced by this type of industries. First, dependence on imports for raw materials. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना में भी ये सब चीज़ें बहुत होती है, तो इंडिया को इसको फेस करना होता है. देन इम्बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, कोई साल बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब प्रोडक्शन होता है, कभी नहीं होता है, तो दैट इज़ इम्बैलेंस. देन ट्रेडिशनल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरीज आर अप्लाइड बाय द आर्टिसंस. लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. देन low quality of goods produced, and the productivity is also very very slow. Poor working conditions, poor wages, salaries, and the other important thing is terrorism. Terrorism basically यहाँ पे बोला गया है on the basis of Jammu and Kashmir, ठीक है. Okay, now let's move on to the next question. Future prospect and strategies for these handicrafts, gems and jewelry industry. Now, raw materials should be imported of good quality at reasonable prices. Products should be manufactured according to the change in fashion and style. Okay? Latest technology should be used. Stress should be given to expand the portfolio, like on synthetic stones, fashion jewelries, colored gemstones, etc. मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें और डिफरेंट वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करना है, तो इंडिया के पास में ये चीज़ नहीं है, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा आर्टिसंस को. देन गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द सिटीज एंड इन अदर प्लेसेस.
Provisions for trade fairs and exhibitions and financial facilities should also be provided. Okay, right. Let's move on to the next question. And provisions for of India's EXIM policy. EXIM means export import policy. इसमें क्या क्या provisions हैं देख लेते हैं. Duty free import facility for service sector having an earning of minimum 10 lakhs from exports to give boost to electronic hardware industry by making it duty free. Promotion of gems and jewelry sector, removal of quantitative restrictions, restrictions को minimum करना है. And to promote SAGE actually it's a special economic zones और area जहाँ पे ज़्यादा concentration होता है export oriented industries का. तो ये different places में है इंडिया में. Then promotion of EOU, that is export oriented units, ये भी important चीज़ है. Then EPCG schemes, export promotion of capital goods. तो इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड रेडीमेड एक्सपोर्टर्स. नाउ देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट के पास में टेक्सटाइल और रेडीमेड को प्रमोट करने के लिए. टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटीज, टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट्स एंड ऑफ कॉटन एंड कॉटन यार्न, टू सेटअप SITP, दैट इज स्टेट अपैरल पार्क्स, जहाँ पे ओनली गारमेंट्स का काम हो. ठीक है. मोर इन्वेस्टमेंट टू डेवलप टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू एस्टेब्लिश प्रोडक्शन सेंटर्स फॉर सिविंग मशीन्स, टू एस्टेब्लिश मोर डिजाइनिंग सेंटर्स और स्टूडियोज एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स. तो लाइक दिस ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रेस कर रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एक्सपोर्ट हाउस. ठीक है, देखते हैं एक्सपोर्ट हाउस क्या है. टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ स्टार एक्सपोर्ट हाउस, एन एक्सपोर्टर मस्ट हैव अचीव्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2-3 ईयर्स. एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है, तो उतना अमाउंट का एक्सपोर्ट अगर कोई एक्सपोर्टर करता है तो उसको एक स्टेटस मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टार एक्सपोर्ट हाउस. स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस को काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलती है गवर्नमेंट से. ठीक है. व्हाट आर दोज? Custom clearance is allowed on self-declaration basis, exempted from bank guarantee, exemption of documents required by the banks or through the banks. They can establish their own export houses. Preference given to handle consignments, मतलब उनको पहले preference मिलता है पोर्ट में. And they are eligible to export freely up to 10 lakhs. So like this. Now the next question. Facilities provided to EPZ. EPZ stands for Export Promotion Zones. ठीक है, जैसे SEZ है वैसे EPZ है. ओके, देखते हैं EPZ क्या है. द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, टू अट्रैक्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जो सेस का है वही ऑब्जेक्ट है मेन. ये मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों में. तो अगर एग्जाम में आता है EPZ या फिर SEZ के बारे में लिखने के लिए तो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट्स. ओके, देन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू मैन्युफैक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स सी EPZ जोन्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ए EPZ, मतलब अगर आपको EPZ में अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको अलाउ कर देती है. ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है. ईजी एंड सिंपल प्रोसीड्योर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटीज ऑन ऑल इम्पोर्ट्स फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स, स्पीडी क्लियरेंस ऑफ कस्टम फॉर्मेलिटीज़, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टर्मिनल्स फॉर ट्रांजिट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स टू दिस इंडस्ट्रीज. Well-connected network of public transport like road, railways, all that. Pollution-free environment and all types of facilities like water, electricity, restaurants, schools and all that. Abundant supply of skilled and semi-skilled manpower. So like this. So this was EPZ.
Now let's move on to the next question, and the question is the measures to enhance agricultural exports. देखते हैं ये मेन मेजर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल मेजर, लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, सपोर्ट प्राइसेस, सब्सिडीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू एनहांस टू प्रमोट एग्रीकल्चर। नाउ टेक्नोलॉजिकल में यू कैन राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, HYB सीड्स, मशीन्स, टूल्स, तो ये गवर्नमेंट फार्मर्स लोगों को प्रोवाइड करती है। देन लैंड रिफॉर्म्स में एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशंस ऑन रेंट पेड, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स, सो लाइक दैट तो फार्मर्स कैनॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द जमींदार्स एंड ऑल दैट। Then institutional credit. There are various banks in the rural areas which specifically they are designed to provide finance to the farmers like NABARD, rural banks. तो यहाँ से फार्मर को लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन सपोर्ट प्राइसेस, जब फार्मर के जो प्रोडक्ट हैं उसको एक फार्मर को मतलब लॉस नहीं होने देती गवर्नमेंट, ठीक है, उनके लिए सपोर्ट प्राइसेस है। अगर उनको कॉस्ट से कम में अगर उनको माल बेचना है तो दे कैन टेक असिस्टेंस टू रिकवर द लॉस। ओके, देन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सब्सिडीज स्पेशली ऑन बाइंग द रॉ मटेरियल, सीड्स एंड ऑल दैट, एंड देर आर अ लॉट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट the next is SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. You may get a short note on this. देखते हैं कुछ important key sentences इसके बारे में। It was set up in 1985 with 8 countries. ठीक है, what are those 8 countries? Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Afghanistan. Right? And its aim is to promote economic growth, social, cultural development in South Asian region, to promote self-reliance, to promote mutual trust, understanding and cooperation, and it generally works on 5 principles, that is sovereign equality, territorial integrity, political independence and non-interference in internal affairs. And the last is SAARC summit is held every year to discuss about the current position. Okay, the next is EPCG, that is Export Promotion Capital Goods Scheme. Now this scheme helps an importer being an export oriented house to import capital goods at 0 rates of custom duty. मतलब कोई भी एक्सपोर्टर अगर अपने प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके इंपोर्ट्स में 0% कस्टम ड्यूटी लगती है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस. It includes machinery, spares, tools, jigs, fixtures, etc. The commodity must be manufactured in India to be exported. तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है. And EPCG scheme aims at promoting exports. ठीक है. Generally this scheme is suitable for exporters of electronic goods. ये भी important point है. 0% custom duty is subject to an export obligation of equivalent to 6 times of duty saved on capital goods imported to be fulfilled in 6 years. This was the particular condition जिसके ऊपर उसकी जो कस्टम ड्यूटी है उसको फ्री कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया EPCG के बारे में. इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बुक से या कहीं से भी प्रिपेयर करने हैं, या कुछ रिलेशंस हैं जैसे इंडो US ट्रेड रिलेशंस, इंडो यूरोपियन ट्रेड रिलेशंस, इंडो जापानीज ट्रेड रिलेशंस, इंडो वेस्ट एशिया ट्रेड रिलेशंस. तो ये रिलेशंस को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिला इसको एक्सपैंड करके आंसर बनाऊं, तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना है. देन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ लेदर गुड्स. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है BOP के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. एंड इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक transactions between the residents of a country and the rest of the world. It shows an account of all receipts and payment on account of goods exported, services rendered and capital received by the residents or the government of a country. ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में. Then in balance of payment accounting, the balance of payment should be 0 because every transaction is
two-sided with debits and balancing credits. But in practice, the balance of payment will not always be equal to zero. ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्लस माइनस रहता है ड्यू टू द दिस डिफरेंस. बेसिकली ये डिफरेंस क्यों होता है? इट मे बी ड्यू टू डेफिसिट और सरप्लस. अब देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हम लोग दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, व्हाट आर दोस? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या होता है फ्रेंड्स? द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द करंट पोजीशन ऑफ ए कंट्री इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनविजिबल आइटम्स. जैसे कि डोनेशन हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया, एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए. तो ये जो खर्चे मतलब जहाँ से पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है, दे कम अंडर करंट अकाउंट. एंड कैपिटल अकाउंट में जनरली जो मशीन्स वगैरह हम लोग परचेज करते हैं या फिर लोन्स आते हैं या हमारी कंट्री से अगर बाहर जाते हैं तो वो सारे हम लोग कैपिटल अकाउंट, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये करंट पोजीशन के लिए है. ओके, सो इसी के बारे में थोड़ा और हम लोग समझते हैं. नाउ द मेन आइटम्स इन करंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सेल्स ऑफ गुड्स अब्रॉड, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स दैट इज इम्पोर्ट, सेल्स ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, स्पेंडिंग बाय द टूरिस्ट्स, परचेज ऑफ फॉरेन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम्स लाइक डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट. तो ये सारे आइटम्स को आपको करंट अकाउंट में लिखना है. एंड देखते हैं मेन आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी, portfolio investment like purchase or sale of shares, bonds, etc. to foreign countries or from foreign countries, official borrowings or lendings. ठीक है, non-resident deposits, reserves and monetary gold. Now, the next important thing in BOP is the measures taken by India to improve balance of payment. Now, first, the central bank could intervene in the foreign exchange market to stabilize the liquidity. Trade restrictions could be relaxed so as to enable the capital flow to foster economic growth. The government could relax restrictions on capital outflows, increasing reserve requirements on non-resident deposits, higher taxes on interest payment abroad, and India adopted current account convertibility, that is CAC, in 1994. And liberalization of the capital account induces large capital inflows which can appreciate exchange rate. So all these were the measures. Now let's move on to the next question. Describe the various export promotion measures adopted in India. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है. सो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स. मैं बात कर रहा था EPZ के बारे में. अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए आगे चले जाते हैं. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EOU. ठीक है. नाउ दीज आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन टेक्सटाइल्स, yarn, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, प्लास्टिक, ग्रेनाइट्स, मिनरल्स एंड ऑल दिस things. All the production in EOU are for exports and not for domestic use. These units are set up in the areas where availability of raw materials, seaport, airport, technology, skilled manpower, industrial parks needs. तो मैंने आपको बताया था अभी EPZ, EOU ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं. Then the next step taken by the Indian government is EPIP, Export Promotion Industrial Parks. ये भी वैसा ही है. Now these have been set up in collaboration with some state government to promote exports. The state government have to arrange the infrastructural facilities for these units. Software Technology Parks, STP, and Hardware Technology Parks are few examples of this type of areas. The next is SEZ, Special Economic Zones. तो ये एक्चुअली IBO 04 पे भी मैंने इसको डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं. दिस वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2000. These zones are enclave of companies which are engaged in export-oriented production. It is open to all fields like manufacturing, trading, services, engineering, chemical goods. All type of goods are there, and there are 171 SEZ in India,
एज ऑफ 2004, ठीक है। एंड द मेन फीचर्स आर ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसके पहले जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। देन आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एक्सपोर्ट हाउसेस, तो इसको भी आप एक्सपोर्ट मेजर्स में डाल सकते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप जनरल नॉलेज से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे पुअर क्वालिटी इमेज, इंडिया की इमेज अच्छी नहीं है वर्ल्ड में अबाउट इट्स प्रोडक्ट। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द इंडियन एक्सपोर्टर्स आर नॉट रिलायबल, ठीक है। Besides being poor quality, they also suffer from certain drawbacks like providing after sale service, इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड करते। ओके, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है इनके पास। एंड द सप्लाई प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जिनको आपको एक्सपैंड करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। एंड इसके बारे में कुछ एक एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर आर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर 1991 एंड द मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी वेयर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. But from time to time, few changes were introduced in the policy, which were as follows. In 1993, the Government of India removed compulsory licensing from the industries, such as motor car, white goods like air conditioners, washing machines, etc. तो यहाँ से गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था कंपलसरी लाइसेंसिंग। 96 में फ्रेंड्स अगेन चेंज हुआ है। The government presented reforms in liberalization policy by including 16 categories of industries for automatic approval to foreign trade. And these industries include exploration of oil and gas services, non-conventional energy sources, basic metals, alloy industry, manufacturing of navigational, ये सारी industries को again, there are 16 categories of such industries. जिनको लिबरल कर दिया था, मतलब आज़ाद कर दिया था। एंड देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। सो दिस वाज द क्वेश्चन। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया से जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। ड्यू टू इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन, इट हैज़ ए वास्ट स्टोरेज ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। एंड इंडिया इज़ ए ह्यूज मार्केट फॉर ए नंबर ऑफ सर्विसेज विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, लर्निंग कैपेसिटी एंड लाइक दैट। एंड इंडिया हैज़ ए डाइवर्सिफाइड कल्चर, हेरिटेज, tourist destination, so it has a fine infrastructure facility, transport, hotels, communication। तो ये भी एक एडवांटेज है फॉर सर्विसेज। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द मोबिलिटी ऑफ लेबर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ वीज़ा पॉलिसीज ऑफ इम्पोर्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है। वीज़ा में दिक्कत आती है तो लोग यहाँ से बाहर जा नहीं पाते काम करने के लिए। Many service sectors have changed into capital intensive from labor intensive due to development of technology. ये तो common topic है। The service sector in India suffers from lack of finance. ये बड़ी problem है। And then many developing countries like South Korea and Taiwan have improved their competitive advantage by increasing their capacities. तो यहाँ से strong competition face करना पड़ता है service sector को। And again, Indian service exporters are not of international standards and lack in sophistication. So foreign consumers generally, they hanker after quality of services, जो इंडिया के पास में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज इंडो एशियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडियाज ट्रेड विद एशियन has picked up but not fast enough. The Asian region is important to India for several reasons.
All projections show that this is the region which has registered the highest growth in the past and expected to maintain the momentum for years to come. And further, the world trading system is in the process of splintering into trade ब्लॉक्स तो लाइक दैट. तो ये एशियन के साथ में इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं. एंड द ट्रेंड्स इन ट्रेड फ्लोज इन वेरियस कंट्रीज शो दैट it is investment flow that drive trade flows particularly when largest increase. तो like that ये इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट जैसा लिखना है 150-200 वर्ड्स के अंदर. ठीक है. सो फ्रेंड्स, that's all in this video and I hope it would help you in your examination. Thank you very much for watching my video.